हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड टैक्स कंप्लायंस। स्वागत है आपका इस चैनल में। एंड थ्रू द मीडियम ऑफ दिस चैनल आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर वन ऑफ द important informations, and that is very important and relevant for the entrepreneur and the business owner. What are those biggest mistakes that you are doing in your business? What are those biggest mistakes that you are doing in your business, and because of these mistakes you are not able to create the right profit in your business? Because of these mistakes you are not able to create the right growth in your business. Because of these mistakes you are not able to create the right performance model in your business. वो मिस्टेक्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप धंधा में हो, बिजनेस में हो, एंड बिजनेस के प्रॉफिट का ऑनर कौन? आप। बिजनेस के लॉसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? आपके पास है। So now that time has come. If you are working as an entrepreneur, as a business owner, unable to create the more profit, more growth in your business, then start to control the mistakes. That is how it is going to help you to create the right opportunities in your business. आपको मिस्टेक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये 5 बड़े मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम यू विल सी दैट योर बिजनेस इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। इसको कंट्रोल करना है। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज ये 5 बड़े मिस्टेक्स अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो वैल्यू एडिशंस देता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए। In a digital world, it is important while you are going to socialize the informations to the relevant persons, to the relevant groups. Might be some of the persons are doing the business, however they are struggling to create the profit. हो सकता है कि उसके लिए काम आ जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। Now coming to the point, द 5 बिगेस्ट मिस्टेक आपको टेक केयर करना है। अगर आपने टेक केयर कर लिया, आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा, आप प्रॉफिट क्रिएट करना शुरू कर देंगे। So what are those 5 mistakes? The biggest mistake, the first biggest mistake that you are doing as an entrepreneur in your business is doing everything by yourself. Now see, doing everything by yourself is a big trap. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Mostly entrepreneur and the business owner इसी पे बिलीव करते हैं, इसी पे विश्वास करते हैं कि हर काम खुद से करना है। एंड व्हाइल यू आर स्टार्टिंग टू डू एवरी वर्क बाय योर एंड, you are allowing to your business to get it in a shut down positions over the period of the time. By doing everything through your end is a big trap. It is a big trap because it is going to create the firefighting in your business. It is a big trap because it is not going to help you to create the right profit, right growth in your business. It is a big trap because you are indulging to yourself. You are engaging to yourself in the activity which is not relevant for you. And what is relevant for you, you are not doing that. ये इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपका रोल होना चाहिए, आप अपना रोल वहां पे नहीं निभा रहे। जो आपका रोल नहीं, आप वहां पे अपना रोल निभा रहे हैं। तो डूइंग एवरीथिंग बाय योर एंड इज ए बिग ट्रैप। यू हैव टू कंट्रोल इट। आपको लगता होगा कि यार मैं खाली बैठा हूं, मैं ही कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, बट आपको सोचना है, खाली बैठना भी इंपॉर्टेंट है। खाली बैठेंगे तो दिमाग लगा पाएंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर पीसफुली सिटिंग एंड हाउ यू आर गोइंग टू think peacefully about the business valuations, business growth. It is important. So make sure that while you are in a business, not doing everything by yourself. And if you are doing everything by yourself, you are allowing to your business to have a more firefighting, and over the period of the time your business will be shut down. And जब बिजनेस आपका बंद होगा तो आप सोचेंगे यार मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं, चलो जॉब ही कर लेते हैं। So this is important that you need to take care in your business. With the first biggest mistake, the second biggest mistake that entrepreneurs and the business owners are doing in their business is not creating a teams. Now understand this. The teams which can help you to create the bigger business or break your business. Teams important है। कोई भी धंधा उठा के देख लीजिए, कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर, बड़े से बड़े सक्सेसफुल बिजनेस ओनर की आप स्टोरीज देख लीजिए, वो हमेशा टीम्स को सस्टेन किया है, टीम्स को ग्रो करवाया है। 2 बंदे से 200 बंदे से 2000 से 2 लाख, ये डेवलपमेंट लेकर के आए हुए हैं एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस ओनर। सो यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू क्रिएट द राइट टीम। while you are
hiring a persons for a different department, you have to take care that कहाँ कितना जरूरी है, depending upon the volume of the business. आप अपने बिजनेस की वॉल्यूम देखिए, आपका 5 लाख का है, 50 लाख का है, 5 करोड़ का है, 50 करोड़ का, कितना का टर्नओवर है, उसके बेसिस पे आप टीम्स को हायर कीजिए. Teams can help you to create the right opportunities in your business, and they are the real entrepreneur who are helping you to build up the right opportunities in your business. They are the real core member of your business who are helping you to create the good profit in your business. सो ये इंपॉर्टेंट है, टीम्स को क्रिएट कीजिए, राइट पर्सन्स को हायरिंग कीजिए और उसको राइट जगह पे उसको प्लेस कीजिए. So if you see the entrepreneurs who are in the successful journey always believe to have a team. So the right persons at the right time at the right place, if you are able to do that, if you are able to place that, you would be able to create the right opportunities in your business. तो सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक जो एंटरप्रेन्योर द बिजनेस ओनर करते हैं कि वो टीम्स क्रिएट नहीं करते हैं. तो टीम्स क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है. टीम्स अगर आपने क्रिएट किया, आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा. Some of the entrepreneurs are feeling that if we hire persons, it is a cost. मेरे दोस्त, हायरिंग नहीं करना सबसे बड़ा कॉस्ट है. खुद से सारा काम करना सबसे बड़ा कॉस्ट है. और अपना काम खुद से करते हैं. लुक एट, यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस फॉर 2 ईयर 5 ईयर, 5 साल में अपनी कितनी प्रॉफिट बनाई. 5 साल में भी अगर आप सर्वाइवल मोड में हैं, अपने आप को स्टेबल मोड पे नहीं लेकर के आए, तो आपने बिजनेस में ग्रो क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है. तो एसएमईज एंटरप्रेन्योर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, दैट दे नीड टू थिंक दैट दे हैव टू create the bigger perspective in their business, and while they are creating the bigger perspective, they have to also support through the right channel, through the right structure, creating the right team, hiring a right person. से important है. बिजनेस का जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वो कभी भी चेंज नहीं हुआ. आपको टीम्स पहले भी हायर होती थी, अगर आप 3 डिकेट्स पहले चले जाए, 4 डिकेट पहले चले जाए, वहाँ पे भी टीम्स हायर होती थी, आज भी टीम्स हायर हो रही है. इट जस्ट ओनली दैट द चेंजेज जो हुआ है वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग में हुआ है. काम तो अभी भी करना है, टीम्स अभी भी हायरिंग करनी है, और वो टीम्स आपको रिजल्ट लेकर के आएगी. अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये आपको ध्यान देनी है आपके बिजनेस में. Create a right team is always helping you to create the right opportunity, right profit, and right growth in your business. With the second biggest mistake, the third biggest mistake that entrepreneurs and the business owners are doing is focusing on service, not focusing on sale. सर्विस, सेल. सर्विस इंपॉर्टेंट है. जब आप सेल्स करते हैं, आपके पास क्लाइंट आ जाता है, आपको उसको सर्विस देनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. बट the micro, small and medium entrepreneur, that they are thinking that okay, we have the 5 customer and we have to be keep this 5 customer only. कोई भी कस्टमर आपका परमानेंट नहीं है, आपको सेल्स बढ़ाने पड़ेंगे. सर्विस इज वन ऑफ द पार्ट दैट यू आर डूइंग टू रिटेन योर कस्टमर, टू हैव एक्सेलेंसी इन योर कस्टमर परफॉर्मेंस. वो आपका एक पार्ट है जो आपकी बिजनेस को सस्टेन करता है. बट बिजनेस का सस्टेन का मतलब ये नहीं है कि आपका वो क्लाइंट हमेशा आपके साथ ही रहेगा. तो आपको अपने बिजनेस के सेल्स के ऊपर फोकस करना है. तो एसएमईज एंटरप्रेन्योर जनरली फोकस नहीं करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दे आर नॉट फोकसिंग इन देयर सेल्स, देयर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग दैट दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर द बिजनेस. तो सेल्स के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्स का फोर्स तैयार कीजिए. सेल्स अगर बड़ा होगा तो आपका कद बड़ा होगा, आपकी प्रॉफिट की कद बड़ी होगी, आपका ग्रोथ का कद बड़ा होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. कोई भी बिजनेस ऑनर का सक्सेसफुल स्टोरी उठा करके देख लीजिए, उनका ये कल्चर्स है, उनका ये स्टैंडर्ड कल्चर्स है दैट दे आर फोकसिंग ऑन द सेल्स. बिकॉज सेल्स जो आपका टर्नओवर को इंक्रीज करता है, और अगर टर्नओवर इंक्रीज करता है, आपकी प्रॉफिट भी इंक्रीज करती है. एंड व्हाइल यू आर फोकसिंग ऑन द सेल्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन बी एबल टू क्रिएट मोर प्रॉफिट. जब आप कॉस्टिंग की बात करते हैं, एक लेवल के बाद आपका फिक्स कॉस्ट सस्टेन हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है. यू हैव टू टेक केयर. फोकसिंग ऑन सर्विस इज गुड, बट नॉट फोकसिंग ऑन द सेल and believing on only retaining the customer, that 2 for customer, 5 customer or 10 customer is not the good deal, is not the good ideas. तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. Create the right system of the sales so that you would be able to create the right opportunities in your business. You would be able to create the good profit in your business. And with the third biggest mistake, the fourth biggest mistake that entrepreneurs and the business owners are doing in their business is focusing on saving, not on investment. Now understand this.
This is the biggest mistake the small entrepreneur and the business owner that they are doing in their business. Profit is the indicator of performance, it is good. बट आप समझिए इसको, अगर आपने सिर्फ सेविंग के ऊपर फोकस किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया हुआ है, आपका बिजनेस नहीं ग्रो करेगा, आपका बिजनेस नहीं ग्रो करेगा। एक छोटी से कुआं से दिन तालाब से लेकर के बड़े समुंदर में पहुंचने के लिए जैसे स्केल बढ़ाते हैं ना, आपको स्केल बढ़ाना पड़ेगा। Saving is one of the good idea, but this saving can never be a good idea for the business. In a business, you have to take care and start to build up more opportunity through the investment. आपने अच्छा सेल्स किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट से आप अपना इन्वेस्टमेंट को फोकस करो। मोर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू टर्न द मोर प्रॉफिट इन योर बिजनेस। बट व्हाट हैपन विद मोस्ट ऑफ द mediocre entrepreneur that they are doing the business with an intentions not to create the profit, and this is the biggest problem. अगर आपने धंधा स्टार्ट किया, 5 साल आपने उसमें स्पेंड किया, आपका प्रॉफिट अब बढ़ना चाहिए, आप सर्वाइवल से स्टेबल मोड में आना चाहिए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड व्हाइल यू आर डूइंग दिस, यू हैव टू फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कमाया, इन्वेस्टमेंट कीजिए, एंड देन फर्दर प्रॉफिट कमाया, इन्वेस्टमेंट कीजिए, एंड व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ रोटेशंस इन योर बिजनेस, your business will start to exponentially grow. And that is important. That is important that you need to take care in your business. So focusing on saving only is not one of the good idea. Focusing on the investment is one of the great idea that can help you to build up the right profit and the right growth in your business. It is important. And with the fourth biggest mistake, the fifth biggest mistake that entrepreneur and the business owner are doing in their business is that they do not have the clear review system. They do not have the clear or strong review system. इस चीज को समझिए। Whatever the business you are doing, there is a past data. There is a past data. 5 साल अपने धंधा में लगाया, आपका टर्नओवर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है, एक्सेलेंसी आप किसके कैसे मेजर करते हो। रिव्यू सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। रिव्यू सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, बट इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी ऑफ द बिजनेस। In any of the business, while you have drive your business and have spent the 5 year, you should start to create the budgeting, forecasting and comparison system, that what you have created the budget, how you have the forecast system, and how you have the actual number, what are those variations and why these variations are, whether these variations can be achievable or it is something that we cannot achieve. आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट वाइज रिव्यू सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट, कोर फाइनेंस डिपार्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट, आपको ये करना पड़ेगा। एंड व्हाइल यू आर डूइंग दिस, यू आर अलाउइंग टू योर बिजनेस टू हैव ए मोर मूवमेंट to create more profit. Review system is one of the important part for your business. But what happened with most of the entrepreneur and the business owner, particularly in micro, small and medium, वो रिव्यू सिस्टम नहीं करते, वो रिव्यू सिस्टम पे उनको बिलीव नहीं है, वो हमेशा आज पे जीते हैं। अच्छा ठीक है, आज प्रॉफिट बनाया, माय डियर फ्रेंड, द बिजनेस वेयर यू मस्ट हैव ए बैकिंग ऑफ द डेटा, एंड विद दैट बैकिंग ऑफ द डेटा यू हैव टू रिव्यू, you have to analyze the market segmentations, and with that market segmentations you would be able to start to create the larger opportunity. आपका प्रोडक्ट की कहाँ रिक्वायरमेंट है, सर्विस की कहाँ रिक्वायरमेंट है, डिलीवरेबल की एक्सेलेंसी क्या है, टर्नओवर हमने मीट करा कि नहीं करा, प्रॉफिटेबिलिटी मीट करा कि नहीं करा, कॉस्ट का क्या हुआ, ओवर फ्लो कर रहा है, अंडर फ्लो कर रहा है, वेरिएशन का क्या स्टेटस है, वेदर इट इज अचीवेबल और नॉट अचीवेबल, नेक्स्ट क्वार्टर में हमने बजट का क्या परफॉर्मेंस है, 6 मंथ में बजट का क्या परफॉर्मेंस है, ईयर में बजट का परफॉर्मेंस क्या है, फोरकास्ट में हमने ज़्यादा किया कम किया, ये सारे रिव्यू आपको बिजनेस में करने पड़ेंगे। एंड देन योर बिजनेस इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्रिएट द राइट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी बिजनेस, प्रैक्टिकल बात करो बिजनेस में, these are the practical scenario that you need to take care in your business. You need to take care in your business, and while you are doing and caring in your business, आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉफिट कब स्टार्ट करना शुरू कर दिए, प्रॉफिट कब क्रिएट करना शुरू कर दिए। एंड दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस।
So to create more elevating the business opportunities, what are those areas of improvement that you need to take care? These are the 5 biggest mistakes that you need to take care in your business. And while you are caring to these mistakes, your business will start to automatically grow. And over the period of the time, your business will have exponential growth. एंड उसके बाद फिर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आपके बिजनेस में आता है, प्रॉफिट बढ़ती है, टीम्स बढ़ती है, साइज बढ़ता है, आप बढ़ाते चले जाते हैं. सो सर्वाइवल से स्टेबल एंड देन एक्सेलेंसी आपको बिजनेस में ले करके आना. और ये कैसे आएगा? जब आप इन ग्रे एरियाज को कंट्रोल करेंगे, बिगेस्ट मिस्टेक्स को कंट्रोल करेंगे. So to summarize, these are the 5 mistakes that you need to take care, you need to control in your business while you are going to grow your business, while you are going to create more profit in your business. Is doing everything by yourself is a big crime. It is a big trap. Please don't do this. Please don't do this. And if you are doing this, your business is going to be allowing you to have a survival mode, and over the period of the time, your business will be shut down. The second one is to create the right team, hiring the right persons at the right place at the right time, जो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में काम करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में आपको सपोर्ट करेगा. So create the right team. And the third one is the focus on service, not focus on sales. तो ये स्टार्ट करो. सर्विस फोकसिंग इज गुड, बट सेल्स के ऊपर फोकस करो. आज आपके पास 5 कस्टमर है, टारगेट करो 10 कस्टमर का, देन टारगेट करो 20 कस्टमर का, 50 कस्टमर का. सेल्स के ऊपर टारगेट करो. फिक्स कॉस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक लेवल के बाद सस्टेन हो जाएगा, उसके बाद बाकी के बाकी आपके सारे प्रॉफिट आ जाएंगे. फोकस ऑन सेल्स. Service focusing is good, but more focusing on the sales. That is going to help you. And the 4th biggest mistake is focusing on saving, not investing. Start in your business to invest more. Create the right directions in your business to have a more profit in your business. Investment karo, profit banao. Investment karo, profit banao. That is important. And the last biggest mistake that you are doing in your business that you need to take care is they create the right or a strong or the clear review system. ये इंपॉर्टेंट है. आपने नंबर्स को रिव्यू करो. बिजनेस आपका, एंटरप्रेन्योर आप है, बिजनेस ओनर आप है, प्रॉफिट आपका, आपको रिव्यू करने पड़ेंगे और आपको गाइडेंस देने पड़ेंगे. एंड दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. एंड जब आप रिव्यू करेंगे, आपको नंबर्स पता चलेगा, आप अपने इंटेलिजेंस से लेकर के आएंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज करेंगे, कंसल्टेंट को यूज करेंगे, एंड देन स्टार्ट टू फाइंड आउट मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर बिजनेस. सो इट इज इंपॉर्टेंट. It is important in your business. So सोचना नहीं है. सोचने वाला कभी नहीं करता. अगर आपने धंधा किया हुआ है, 2 साल का धंधा है ना, 2 ही मेंबर है ना, स्टार्ट टू एलिवेट टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज इन योर बिजनेस. सोचने वाला कभी कुछ नहीं करता है. करता वही है जो एक्शंस लेता है. आप अपने बिजनेस में एक्शंस लीजिए एंड प्रॉफिट को बढ़ाइए, प्रॉफिट को बढ़ाइए. एंड टू समराइज दिस, वन मोर इंफॉर्मेशन, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है, जिस तरीके से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रही है, ये सही टाइम है या राइट टाइम है अपने प्रॉफिट्स को बनाना, टू स्टार्ट द बिजनेस, टू ग्रो. बिकॉज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करे. जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, आपके बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा, आपके बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा. So start to create the business with an objective to create more profit, more growth, to take care of these 5 biggest mistakes that you are doing in your business. If you are not doing well, you are in the phase of creating more profit. And if you are doing, start to control this mistake to find out more opportunities. And that opportunity must be in realistic to create more profit and growth in your business. करेंगे ना, स्टार्ट कीजिए, ग्रो कीजिए. बिकॉज आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये आपका सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं. आप एम्प्लॉयमेंट के साथ में आप देश के इकोनॉमी में भी सपोर्ट करते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. स्टार्ट टू फाइंड आउट द न्यू अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट मोर एंड मोर ग्रोथ इन योर बिजनेस बाय कंट्रोलिंग दिस 5 biggest mistakes that you must take care. This is Sajjan Singh signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.